حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانات، رہنما نون لیگ اور رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف گرفتار۔ لاہور کی سیشن عدالت سے عبوری ضمانت خارج ہونے پر پولیس نے گرفتار کیا۔ پروسیکیوشن نے میاں جاوید لطیف کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی تھی۔ سرکاری وکیل کے مطابق جاوید لطیف کا متنازع بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ جہانگیر ترین کا ہم خیال گروپ آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ اراکین اسمبلی وزیر اعظم کو کیسز سے متعلق تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ جہانگیر ترین خود ملاقات کرنے نہیں جائیں گے۔ ہم خیال اراکین پارلیمنٹ کی اکثریت اسلام آباد پہنچ گئی۔ دوپہر 1 بجے ترین کی رہائش گاہ پر مشاورتی بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم کے سامنے اٹھائے جانے والے نکات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ راجہ ریاض چاہتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں۔ وزیر اعظم کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ تہوار جاری، ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا کے ہاتھوں مزید 142 افراد جاں بحق، 4487 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ معاون خصوصی فیصل سلطان کہتے ہیں صورتحال بے قابو ہوئی تو مردان کے بعد دیگر شہروں میں بھی لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ ملک بھر میں آج سے 40 سال سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیج کر رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے واک ان ویکسینیشن کی سہولت۔ سربراہ NCOC اسد عمر کی شہریوں سے زیادہ تعداد میں رجسٹریشن کروانے کی اپیل۔ پاکستان میں آکسیجن کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کوششیں تیز۔ اسٹیل ملز آکسیجن پلانٹ کی بحالی کے لیے تکنیکی ٹیم تشکیل۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ اور نجی شعبے کے ماہرین بھی شامل۔ معائنہ ٹیم آرمی انجینئرنگ کور کے ہمراہ آج پاکستان اسٹیل آکسیجن پلانٹ کا دورہ کرے گی۔ چیئرمین پاکستان اسٹیل بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسین، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے KB علی، پاکستان آکسیجن کے ہیڈ آف آپریشن سعد عالم بھی معائنہ ٹیم کا حصہ ہیں۔ دوسروں کو نصیحت، شہریوں کو کورونا کے باعث احتیاط کا سبق پڑھانے والے وزیر صحت KP خود SOPs کی خلاف ورزی کرتے پکڑے گئے۔ پشاور کے ریسٹورانٹ میں دوستوں کو دی جانے والی افطار پارٹی کی تصاویر سامنے آنے پر انتظامیہ کا ایکشن۔ صوبائی وزیر کے خلاف FIR درج، پشاور انتظامیہ نے ریسٹورانٹ سیل کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا وائرس کے 2680 نئے کیسز، مجموعی تعداد 2,93,468 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 107 اموات۔ صوبے بھر میں کرونا SOPs پر جزوی عمل درآمد۔ سرکاری نجی دفاتر میں 50% عملے کی پابندی پر جزوی عمل درآمد۔ بیشتر شہری ماسک کے بغیر گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ لاہور میں بغیر ماسک گھومنے پر 726 جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر 854 سے زائد مقدمات۔ 24 دکانیں، ہوٹل اور 2 فیکٹریاں سیل۔ بغیر ماسک ڈرائیونگ کرنے پر چالان بھی جاری۔ ادھر پشاور میں SOPs کی خلاف ورزی پر 160 سے زائد افراد گرفتار، 40 دکانیں سیل۔ اور A لیول امتحانات میں امتحانی مراکز کے باہر SOPs پر عمل درآمد کم دیکھنے کو ملا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا نوٹس، کہتے ہیں امتحانات کے انعقاد سے متعلق اجازت سخت SOPs پر عمل درآمد کی شرط کے ساتھ مشروط تھی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے سمیت کورونا پھیلاؤ کی رپورٹس پر آج NCOC کے خصوصی اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کرونا ویکسین کی ریٹیل قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے گی۔ اجلاس میں PIA کے ری اسٹرکچرنگ پلان پر بریفنگ کے علاوہ قومی ایئر لائن کے ملازمین پر لازمی سروس ایکٹ نافذ کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ گردشی قرضے کے پلان پر بریفنگ بھی کابینہ اجلاس کے آج کے ایجنڈے میں شامل ہے۔
मुल्क में तारीख की बदतरीन हुकूमत है। मईशत तबाही का शिकार और बेरोजगारी बढ़ रही है। करप्शन से छोटी नौकरी भी महफूज नहीं। हुकूमत ने हर शोबा बर्बाद कर दिया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। हुकूमत वैक्सीन खरीदने की बजाय मांगे तांगे की वैक्सीन पर गुजारा कर रही है। एक सवाल के जवाब में कहा, PDM में वापसी का पीपल्स पार्टी का चांस उसके अपने पास है। एहसन इकबाल का कहना है, आज पंजाब में रिश्वत का बाजार गर्म है। इंतजामिया दोनों हाथों से लूट मार में मसरूफ है। हम जेलें और पेशियां भुगत रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। भारत में कोरोना वायरस के बायस सूरत हाल गंभीर। 24 घंटों में मजीद 3,23,000 मरीज सामने आ गए। 2700 से ज़्यादा हलाक। दिल्ली से हरियाणा, मुंबई से केरला और चंडीगढ़ से मशरक़ी बंगाल तक वबा का कब्जा। मरीजों के लवाहिकीन प्यारों की जान बचाने के लिए बिल बिलाने लगे। WHO के मुताबिक भारत में सूरत हाल ख़तरनाक है। मदद के लिए आलमी इदारे का इजाफी अमला और इमदादी सामान भेजने का ऐलान। अमरीका वैक्सीन की लाखों खुराकें, जबकि फ्रांस और बरतानिया तिब्बी सामान भिजवाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सरकार का ईद पर 6 छुट्टियां देने पर गौर। मरीज सवात समेत तमाम तफरीही मकामात पर होटल बंद रखने की तजवीज़। ऐलान जल्द मतवक्के। उधर कैदियों की सज़ा में 30 दिन की मुआफ़ी की समरी भी इरसाल। दहशतगर्द और कत्ल समेत संगीन नौयत के कैदी अहल नहीं होंगे। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बयानात। रहनुमा नून लीग और रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रोसिक्यूशन ने जावेद लतीफ़ की जमानत खारिज करने की इस्तदा की थी। अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ को बयान देना महंगा पड़ गया। अबूरी जमानत खारिज होने पर जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की मुकामी अदालत ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर से मुतल्लिक केस में अबूरी जमानत की समाअत की। सरकारी वकील ने जमानत खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि जावेद लतीफ़ का मतनाज़े बयान अपने लीडर की मोहब्बत में हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। जावेद लतीफ़ के वकील ने दलाइल दिए कि CIA पुलिस केस को देख रही है। पुलिस के पास इन मामलत पर एक शहरी की दरख्वास्त पर FIR दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया और थोड़ी देर बाद फैसला सुनाते हुए अबूरी जमानत खारिज कर दी। जावेद लतीफ़ फैसला सुनने से पहले ही अदालत से रवाना हो गए। फैसला आने पर पुलिस, CIA पुलिस और डॉल्फिन ने मुश्तरका ऑपरेशन करके सगियां पुल के करीब जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। उधर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमती बौखलाहट जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि अफ़हाम तफ़हीम, तहम्मुल व बर्दाश्त और हम आहंगी के जज्बे मुल्क और मुआशरे को आगे लेकर जाते हैं। शहबाज शरीफ ने खुलकर तनकीद की। कहा कि उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। केसेस कंट्रोल ना हुए तो दीगर शहरों में भी लॉकडाउन लग सकता है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, आज से 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और कोरोना केसेस कंट्रोल ना हुए तो दीगर शहरों में भी लॉकडाउन लग सकता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर रोज़ अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि ये जो बढ़ती तादाद है कोविड के मरीज़ों की, इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद रहें। एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की ख़रीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेज़ ख़रीद की जा चुकी हैं। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी
30 मिलियन डोजेस की, यानी 3 करोड़ डोजेस की, जिसमें एक डील ऐसी है जिसमें जो थोड़ी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी पाकिस्तान में आएगी, यानी जो वैक्सीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आएगी और पाकिस्तान में फिल होगी। ये कैंसाइनो कंपनी के साथ है। इसके बरक्स 1.7 मिलियन यानी 17 लाख डोजेस जो हैं वो हुकूमत चीन की तरफ से बतौर तोहफा या बतौर ग्रांट आई थी। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वबा के हाथों मजीद 142 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 142 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 4,487 नए केसेस भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 10.20% हो गई है। कोरोना के वार 24 घंटों में 142 जाने ले गए। 4,487 नए केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 10.20% और एक्टिव केसेस की तादाद 87,794 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा 107 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 22, सिंध में 6 और इस्लामाबाद में 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई। मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना के 6,149 मरीज ज़ेर इलाज, इनमें से 599 वेंटिलेटर्स पर हैं। गुजरांवाला में 81, पेशावर में 78, मर्दान में 73 और लाहौर में 69% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। पंजाब में कई प्राइवेट दफातर में 50% स्टाफ के काम करने समेत सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक औकात कार की पाबंदी पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद हो सका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया है। ऐवान वज़ीर आला में मुनक़्क़िद इजलास में तमाम कमिश्नर्स और अस्करी हुकाम वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। महकमा सेहत के हुकाम अस्पतालों की सूरत हाल, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन दस्तियाबी के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया जाएगा। सूरत हाल का जायज़ा लेकर SOPs के सख्त निफाज के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के हवाले से भी हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। अब ये खबर कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट का इंदराज गिरफ्तार कौन करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की। पुलिस सूबाई वजीर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकी। इसी पर बात करेंगे में ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शाहजेब खान ने। जी शाहजेब, क्या मामला है, पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखें, ये गुज़िश्ता रोज़ अफ्तार के लिए जो सैकड़ों अफराद को वज़ीर सेहत ने बुलाया था, उनकी मेज़बानी की थी, उस पर तो रात गए FIR दर्ज कर ली गई है। जो असिस्टेंट कमिश्नर मतनी हैं उनके कहने पे जो है FIR दर्ज की गई है। लेकिन अभी इसमें जो मैनेजर है, उसको रेस्टोरेंट के मैनेजर को तो गिरफ्तार कर लिया गया था रात को ही, लेकिन 2 बासर अफराद जो हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें वजीर सेहत सलीम तैमूर झगड़ा हैं और उनके साथ DPO एबटाबाद ज़हूर अफरीदी हैं जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। तो इस वक्त तक अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। तो सोशल मीडिया पे भी यही बात चल रही है कि गिरफ्तार कौन करेगा। तो ताहाल पुलिस भी इस पर कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया भी मज़ीद कोई मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे रब्ता भी किया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक मैनेजर के अलावा कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है अभी तक। तो शाहजेब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेली खबरें आती हैं कि पेशावर में हो या मुल्क के दूसरे शहरों में SOP की जो भी खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होते हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो क्या ऐसा सलूक बाकियों के साथ क्यों नहीं फिर हो रहा? अगर हमने देखा तैमूर सलीम झगड़ा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा फिर? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर मतनी ने रात को जो FIR दर्ज की है रात गए, उसमें सलीम तैमूर झगड़ा का पूरा नाम भी नहीं लिखा गया। वजीर सेहत का नाम उन्होंने सलीम तैमूर लिखा है। लिहाजा इसमें तो ये बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि गिरफ्तार किसको किया जाएगा, क्योंकि उनका पूरा नाम जो है सलीम तैमूर झगड़ा है। और इसी तरह DPO ज़हूर अफरीदी हैं एबटाबाद के, वो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। तो इस वक्त तक तो ये कहना कबल वक्त होगा कि ये पुलिस मजीद क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक DPO है और दूसरा वजीर सेहत है।
تو دونوں کو تاحال کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، صرف FIR تک ہی محدود ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ زیب خان، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے SOPs کی خلاف ورزیاں کی، بہت سے لوگوں کو افطار پارٹی دی. پولیس صوبائی وزیر کے خلاف ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکی. کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر رپورٹ کا اندراج تو ہوا، لیکن گرفتار کون کرے گا؟ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے SOPs کی خلاف ورزیاں کی، اور آپ یہ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ افطار پارٹی کی تصاویر ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا اور SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کی گئی. رپورٹ کا اندراج تو ہو چکا، لیکن گرفتار کون کرے گا؟